Welcome beta. Today we will discuss about the topic parabola related with the class 11th and the chapter 11th. Here we are given with the first question for the following parabolas. Find the focus, length of lattice rectum, equation of axis, equation of directrix. Related with each parabolas. Here we are given with some statements of the parabolas like y square equal to 18x, y square equal to minus 16x, and third x square equal to 10y, x square equal to minus 7y. We have already discussed about all four types of parabolas. ठीक है. First of all, we consider the first statement y square equal to 18x. If we compare this parabola with the standard form y square equal to 4ax, then we clearly see that this is the parabola of the type right-handed, because in this case here we are given with the square of y. That means the parabola is symmetric about x-axis and the right side is positive, so why we can take it the right hand from the origin, so why this is the right-handed parabola. If we sketch this parabola, then that parabola must be of like this. Here L and L dash be the length of lattice rectum, where S is the focus of this parabola through which this L dash pass, and perpendicular to the axis of parabola. And if we compare this equation with the standard form of the parabola y square equal to 4x, then we must have 4 equal to 18, and from here we can calculate a equal to 18 by 4, which is to be 9 by 2. So why we must have a equal to 9 by 2. And we all know that the focus of this right-handed parabola must be given by a and 0. That means s equal to a0. So why we must have s equal to, if we put the value of a 9 by 2, then we must have the coordinate of the focus s are 9 by 2 and 0. So we can find the focus, the first point of this parabola, which is to be 9 by 2 and 0. And the secondly we know that that vertex is the midpoint of focus and the point of contact of directrix as well the axis. That means if we take this point as Q, then V is the midpoint of this Q and S. And we know that if this V is the midpoint, then this distance, which is to be equal to A, then this must equal to A. This is also A. So why the equation of directrix, which is to be the line perpendicular to the axis and have equal length from the vertex as the length of focus, distance of focus from the vertex. So why equation of directrix, which is to be x equal to minus a. So why x is equal to minus 9 by 2. This is the equation of directrix. If we solve this further, then taking LCM 2 or this 2 multiply with x, we have the result 2x plus 9 equal to 0. This is the equation of directrix. And thirdly, equation of axis. We all know that this parabola must be symmetric about x-axis. Therefore, equation of x-axis is y equal to 0. And this is the equation of this parabola. And also, we have to find all these topics, all these points we have already discussed. Length of lattice rectum. Now, length of lattice rectum. Length of lattice rectum, which is to be L and L dash, and given by 4a, which is to be equal to 4a. And here we clearly see that 4a equal to 18. Therefore, length of lattice rectum clearly 18. Length of lattice rectum is equal to 18. All these 4 points are to be discussed related to this parabola. That's all. Yes बेटा, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. इसका सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16x. ये आपका सेकंड टाइप का पैराबोला है जिसमें हमने देख लिया कि राइट साइड इसकी नेगेटिव है, स्क्वायर तो y का ही है,
लेकिन राइट साइड आपकी नेगेटिव है, इस कारण से क्या कैसा हो, लेफ्ट हैंडेड। अगर हम इसको स्केच करना चाहें तो हमारे पास ये पैराबोला होगा जिसका वर्टेक्स ओरिजिन आपका, और ये फोकस होगा आपके एक्स एक्सिस पे ही बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, और डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में, द लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस। अब यहां से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो आपके पास 4a का मान इस केस में भी क्या हुआ, इस केस में भी आपके पास 16 हुआ, 4a इक्वल टू 16, देयरफॉर a इक्वल टू 4, यहां से a की वैल्यू 4 है, इसका मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए हैं। इस केस में भी फोकस होगा आपका 4 यूनिट की डिस्टेंस पे, यानी हो जाएगा -4 and 0, क्योंकि a का मान आपके पास 4 ही है, इस केस में भी a का मान 4 आया, लेकिन लेफ्ट हैंड होने के कारण x के नेगेटिव पोर्शन पे आपका फोकस होगा, इस कारण से आपके कोऑर्डिनेट जो फोकस के हैं वो नेगेटिव होंगे, नेगेटिव शो करेंगे, -4 and 0। तो फोकस के कोऑर्डिनेट आपके पास हुए, देयरफॉर s कैन बी रिटन -4 and 0। Similarly, the length of lattice rectum, in this case length of lattice rectum is also 16, वो क्योंकि लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं, इस कारण से आपका 16 ही काउंट होगा। लेंथ ऑफ lattice rectum, lattice rectum is equal to 16. This negative sign B only shows that the parabola B must of left-handed. Left-handed है means focus lie on the negative portion of the x-axis. So why this negative sign is to be represented. इस केस में आप देखिए, इसका आपके पास एक और रहता है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब एक्सिस तो इसका भी क्या है बेटा, एक्स एक्सिस ही है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला इज आल्सो y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस की इक्वेशन आपकी y इक्वल टू 0 ही होती है, तो इस केस में भी आपकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इक्वल टू 0 ही रहेगी। और थर्ड पोर्शन अगर आप देखना चाहें इसमें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या आएगी भाई, डायरेक्ट्रिक्स आपकी ओरिजिन से राइट साइड में है, और कितनी डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस पे वर्टेक्स से आपका फोकस होता है उतनी डिस्टेंस पे आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। अब अगर फोकस, ये वर्टेक्स आपका फोकस की इससे डिस्टेंस आपकी 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये भी तो 4 यूनिट ही होगी, 4 यूनिट, ये डिस्टेंस भी आपकी 4 है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आपके 4 and 0 हैं, 4 and 0। सो वाई इक्वेशन ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू x इक्वल टू 4, क्योंकि x इक्वल टू 4 वाले पॉइंट से पास कर रही है, पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, x इक्वल टू 4। ये 4 पॉइंट जो आपको डिस्कस करने के लिए कहे गए थे इस पैराबोला से रिलेटेड, वो आपने निकाल लिए हैं। सबसे पहला आपके पास फोकस का, जो कि आपने काउंट किया, a की वैल्यू ही शो करती है फोकस को, वो a का मान आपने इसको जनरल जो आपकी इक्वेशन है उससे आपने कंपेयर करने के बाद फाइंड आउट किया, 4 इक्वल टू 16, वहां से इक्वल टू 4 हुआ, तो फोकस हुआ -4 है, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड है। इस कारण से आपके पास जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है वो आपकी 4a होती है, और 4a की वैल्यू 16 के बराबर है, यहां से कंपेयर करके देखते हैं, तो 4 इक्वल टू 16, इस कारण से आपकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम डायरेक्टली 16 है, और आपका जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 4 है, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपकी y इक्वल टू 0 है, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ x एक्सिस। तो स्टार्ट कर देंगे। यस बेटा, थर्ड पार्ट देखिए इसका क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10y, यानी यहां पे हमारे पास किस टर्म का स्क्वायर दिया हुआ है, x का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है। सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, उसमें भी आपके पास 2 परसेंट आप याद करो, यानी या तो अपवर्ड है आपका पैराबोला, या फिर आपका पैराबोला डाउनवर्ड है। y की सिमेट्री ये 2 होती हैं, ठीक है। अब ये कैसे पता चले कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, वो आपकी राइट साइड बताएगी। इस केस में राइट साइड आपकी क्या है, 10y, विच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो आपका अपवर्ड हुआ, ये आपका अपवर्ड पैराबोला, इसका मतलब फोकस आपका यहां कहीं होगा s, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 and a, ठीक है। अब a की वैल्यू फाइंड आउट अगर आपने कर ली तो इसका मतलब फोकस मिल गया हमें, इसका हमें फोकस मिल गया है, ठीक है। अब ये देखिए आपके पास, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करवाऊं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है, 4ay। यहां से 4a का मान कितना हुआ, 4a का मान हुआ 10, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 4a इक्वल टू 10 रखें, यहां से a का मान काउंट करें 10/4, विच इज टू बी 5/2, therefore a equal to 5/2, and therefore we can say that the focus of this, यानी s, जिसको आप ऐसे डिनोट करते हो फोकस को, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 and 5/2। 0 and 5/2 क्यों कहा, 0 इस कारण से कहा क्योंकि y के सिमेट्रिक है, y एक्सिस पे आपका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इस कारण से पहले कोऑर्डिनेट को आपको 0 दिखाना पड़ेगा, और y की वैल्यू
आपके पास 5/2 है जो a के रूप में है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये आपकी y ही है, y के ऊपर ही तो ये पॉइंट, तो a का मान आपका 5/2 होने से आपका फोकस हुआ 0.5/2। इक्वेशन इसकी देखना चाहें, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस अब किसके सिमेट्री का ये सिमेट्री का अबाउट y एक्सिस, और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होगी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, यानी इस केस में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये लाइन होगी जो फोकस से पास करेगी और परपेंडिकुलर होगी y एक्सिस के, यानी l डैश इस केस में यहां होंगे, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स l डैश, ये लेंथ ऑफ आपकी लेटेस्ट रेक्टम है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a के बराबर होती है। 4a का मान हमने कंपेयर कर लिया 10 के बराबर है, इसका मतलब ये जो आपका है 4a इक्वल टू नहीं, यही आपकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। देयरफॉर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम आपकी 10 ही हुई, इस केस में आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपका 10 रहेगा। एक पॉइंट और बचता आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखिए बेटा, अगर इसकी सिमेट्री y के अलोंग है और आपका अपवर्ड पैराबोला है तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी नीचे रहेगी, यानी x ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन एट द सेम डिस्टेंस विच इज टू बी इक्वल फ्रॉम v टू s। देयरफॉर ये जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ है ये y इज इक्वल टू a के बराबर हो जाएगी, यानी -a, इस केस में वो -a है, y इक्वल टू -a, और a का मान आपके पास कितना है, a का मान आपके पास 5/2 है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू y इक्वल टू -5/2 ही, -5/2। अब 2 को मल्टीप्लाई करो इससे, यदि इसको और फर्दर रूप में लिख सकते हैं 2y इक्वल टू -5, एंड फर्दर इफ वी टेक दिस -5 to the left side, then we must have 2y plus 5 equal to 0. This is the equation of डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है बेटा, दोनों तीनों रूप इसी के हैं, y इक्वल टू -5/2 लिखें, 2y इक्वल टू -5 लिखें, या 2y plus 5 इक्वल टू 0 लिखें, तीनों ही इक्वेशन आपकी डायरेक्ट्रिक्स की हैं, आपका कोई भी आंसर हो सकता है। यस बेटा, सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से क्या कहता है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन द फॉलोइंग, यानी कुछ स्टेटमेंट हमें दी हुई हैं, इसमें हमें इक्वेशन बनानी है किसकी, पैराबोला की। दिया हुआ क्या है, फोकस दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है। ऐसे ही इस सेकंड पार्ट में भी फोकस दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है। बेटा देखो, डायरेक्ट्रिक्स से हमें कोई जरूरत नहीं है, केवल फोकस भी अगर हमारे पास है तो हम पैराबोला की इक्वेशन इजीली बना सकते हैं। क्या होती है हमारे पास से, देखो आपके पास जो पैराबोला था आपने रीड किया होगा, ये फोकस आपको सब कुछ ही बता देगा, सारा इंड करता है भाई। फोकस आपका जो पॉइंट है क्या शो करता है, tan 0 ये शो करता है कि हमारा ये जो पॉइंट है x एक्सिस पे है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, और वो भी x का मान 10 हुआ तो x एक्सिस पे हुआ, और पॉजिटिव 10 है, इसका मतलब क्या हुआ, राइट हैंडेड हुआ। इसका मतलब ये जो फोकस है आपके राइट हैंडेड पैराबोला का है। इसका मतलब हमारे पास कैसा होना चाहिए, हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए, ये राइट हैंडेड पैराबोला है, ये इसका वर्टेक्स हुआ, ये इसका फोकस हुआ, इस फोकस के s के कोऑर्डिनेट हुए tan 0, ये tan 0 है। डायरेक्ट्रिक्स इधर है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सभी को पता है, अगर फोकस मेरा राइट हैंडेड होता है तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी जो होती है लेफ्ट हैंड होती है। अब इसकी इक्वेशन क्लियर दी हुई होगी कि x इक्वल टू -10 है, देख लो आप x इक्वल टू -10 ही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है 10 यूनिट है तो ये भी 10 यूनिट ही होगी, बट इन द नेगेटिव पोर्शन ऑफ x एक्सिस, सो y x इक्वल टू -10। अब इक्वेशन इस राइट हैंडेड पैराबोला की हम सभी जानते हैं, क्या होती है भाई, इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन है। अब अगर a का मान मुझे मिल ही गया जब 10 है, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं s इक्वल टू यानी a0, ये होते हैं। अब अगर इसको मैं s को बट गिवन फोकस क्या है, गिवन फोकस आपके पास है tan 0, तो कंपेयर करता हूं अगर मैं s को, तो मेरे पास a का मान 10 हुआ, a का मान 10 हुआ और रिप्लेस कर दो इस इक्वेशन में, देयरफॉर हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 10, and if we replace a equal to 10 in this equation, then y square equal to 40x. This is the equation, required equation of our focus, जिसका फोकस tan 0 दिया हुआ है, उस पैराबोला की रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी y square equal to 4ax। यस बेटा, इसी प्रकार से हम इसका सेकंड पोर्शन भी कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि फोकस दिया हुआ आपका इस केस में, सेकंड केस में 0.5, जो क्लियरली शो करता है कि हमारा पॉइंट किस पे लाई करता है, y एक्सिस पे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट का पॉइंट 5 है आपके पास, और ये भी आपका किस में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आपका y पॉजिटिव है।
पॉजिटिव है तो हमारा पैराबोला किस टाइप का होगा, हमारा पैराबोला का y का मान पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड होता है, ये अपवर्ड पैराबोला। फोकस आपका यहाँ पे है ये 0,5, ये आपका s जिसके कोऑर्डिनेट है s पॉइंट है ये, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,5। अब डायरेक्टली इसकी इक्वेशन इसमें दी हुई है, देखो नीचे की तरफ मिलेगी y = -5, y = -5 ये रखी है, तो हमारा काम तो फोकस ही चल जाएगा। इस टाइप के पैराबोला की, अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन हम जानते हैं क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द अपवर्ड पैराबोला क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये होती है x स्क्वायर। अच्छा ये y की सिमेट्रिक है ना, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay कीजिए आप, इसको आप ऐसे लिखें x स्क्वायर इज इक्वल टू -4, ये आपका 4ay, क्योंकि अपवर्ड है, y के सिमेट्रिक है तो x का स्क्वायर रहेगा, x का स्क्वायर तो x इक्वल टू 4ay। अब a का मान आपके पास क्या है, फोकस आपने क्लियर किया, ये s इक्वल टू कोऑर्डिनेट होते हैं 0 एंड a, और a को कंपेयर करें इससे तो a का मान हुआ 5, देयरफॉर a इक्वल टू 5। अगर हम इस a को इसमें रिप्लेस करते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4 × 5 × y विच इज टू बी 20y, therefore x square equal to 20y is the required equation of this upward parabola। ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। यस बेटा, थर्ड इक्वेशन क्या कहते हैं इस एक्सरसाइज का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0 एंड फोकस है -2 0। इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है, वर्टेक्स दिया वही 0 0 और एस आपका जो फोकस दिया वो 2 0। देखो भाई दोनों इस क्वेश्चंस में दो स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, दोनों में क्या डिफरेंस आया, देखो वर्टेक्स तो आपका वही ओरिजिन पे है, जितने भी पैराबोला अब तक हमने किए हैं सभी का वर्टेक्स किस पे है, ओरिजिन पे, यानी 0 0 पे ही है, लेकिन फोकस से चेंज करवाता है। फोकस ही आपको ये बताता है कि आपकी जो डायरेक्शन है किधर गई है, राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। अब ये जो फोकस है क्या शो कर रहा है कि x का नेगेटिव मान है, x की नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब x एक्सिस पे है फोकस, बट इन द नेगेटिव पोर्शन ऑफ द x। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पैराबोला ये जो है पहला लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। इसी प्रकार से अगर आपका फोकस सेकंड केस में 0 2 है तो हम कहेंगे ये आपका क्या हुआ, मान तो देखो y का आपके पास, x तो 0 हुआ, इसका मतलब ये y के सिमेट्रिक है, फोकस आपका y एक्सिस पे है और वो भी पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब अपवर्ड है, तो ये पैराबोला आपका हो जाएगा अपवर्ड, ये लो इस टाइप से, और ये जो पैराबोला आपका हो जाएगा ये आपका लेफ्ट हैंडेड यानी इस टाइप से। इन दोनों की इक्वेशन हम जानते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है वो क्लियर दिए गए हैं। इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें इक्वेशन में, तो जब ये सिमेट्री अबाउट x एक्सिस है तो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये कहलाएगी इसकी इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या है आपके इस पास पैराबोला की जो आपका लेफ्ट हैंडेड है, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ठीक है। जनरल नहीं बेटा सॉरी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्योंकि जनरल तो आपकी दूसरी इक्वेशन होती है जो हमने लिखी नहीं अभी। इसी प्रकार से अगर मैं इस फोकस को s से कंपेयर करवाऊं, s इक्वल टू क्या होता है इस टाइप के पैराबोला का, s तो आपका है -a एंड 0, तो a का मान क्या हुआ अगर कंपेयर करें से, देयरफॉर a इक्वल टू, a का मान हुआ 2। आप कहेंगे सर a 2 आया इसका मतलब तो पॉजिटिव होगा, सो होगा, नहीं, ये नेगेटिव साइन मैंने कंपेयर करने से ओमिट कर लिया, लेकिन ये तो क्लियर ही है कि 2 यूनिट की डिस्टेंस में, बट इन द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, यानी यहां पे आपका फोकस है ये, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास -2 एंड 0, ये आपके फोकस के कोऑर्डिनेट हैं। और इसकी इक्वेशन आपके सामने क्लियर, तो a का मान रखो ये 2 डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव साइन हम शो कर चुके हैं। देयरफॉर इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, a मींस 2 into x which is to be y स्क्वायर इक्वल टू -8x, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी जो आपका रिक्वायर्ड पैराबोला है। इस प्रकार से सेकंड पोर्शन पे ये देख लो, इसका इसी के साथ बन जाएगा। अगर ये आपका अपवर्ड है और इसको मैं कंपेयर करूं किससे भी, s हमारा क्या होता है, s हमारा होता है इस केस में 0a है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, जब ये सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है तो x का स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू अपवर्ड है तो आपका प्लस का आएगा 4ay, ये बन जाएगा। a का मान कंपेयर करो इससे फोकस से, देयरफॉर a इक्वल टू, इस केस में a आपका हुआ 2 प्लस का 2, a भी प्लस का 2 है, ठीक है। अब ये +2 यहां रखेंगे, आप कहेंगे सर वहां भी +2 था यहां भी +2 है, a का मान तो 2 ही आया, लेकिन ये जो प्लस माइनस की सिंबल है ये आपकी इक्वेशन को चेंज कर देंगे, क्योंकि इस केस में आपकी इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू +4ay है और उस केस में इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax थी। इस कारण सिंबल से आपकी इक्वेशन चेंज हो गई है। x स्क्वायर इक्वल टू 4 into a इक्वल टू 2 एंड y
देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल कितना होगा बेटा 8y, यानी ये आपकी इक्वेशन रह जाएगी इस पैराबोला की। यस बेटा, फोर्थ क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स एट ओरिजिन, यानी जिसका वर्टेक्स 0 0 दिया हुआ, ओरिजिन मतलब 0 0 पे है और फोकस दिया हुआ a0। इसी प्रकार से इसका सेकंड पोर्शन है, वर्टेक्स वही ओरिजिन पे है बट फोकस को चेंज कर दिया 0 एंड -a। तो ये तो आपकी जनरल इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन आपने लिखी थी, 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस आपने पढ़ी थी, उन्हीं इक्वेशंस को ही लिख देना है। क्योंकि ए का मान एक ही फॉर्म में है, ए का मान न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं दिया। तो आप ये देखिए, आपका जो फोकस a0 हुआ, ये क्या शो करता है, फोकस a0 शो करता है कि राइट हैंडेड है, क्योंकि आपके x का मान a है, y का मान 0, जो कि आपके x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे लाई करता है। इसका मतलब आपका जो पैराबोला होगा वो आपका सिमेट्री होगा अबाउट x एक्सिस और उसका फोकस होगा राइट हैंडेड, यानी ये आपकी फॉर्म है, ये आपका पैराबोला। तो इसकी इक्वेशन हम जानते हैं सभी, राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, a की जगह a यूज करना है। और इसी प्रकार से इसकी इक्वेशन देखना चाहोगे तो क्या हो जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इस केस में आपके पास किसका मान है, इस केस में आपके पास x का मान नहीं है, y का मान है, और वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब ये डाउनवर्ड है। ये जो पैराबोला आप देखेंगे तो ये पैराबोला आपका डाउनवर्ड आएगा, ये देखिए, क्योंकि फोकस आपका नेगेटिव y में है, नेगेटिव y में है तो यहाँ पे s है, इसके कोऑर्डिनेट 0 n -a है इस पॉइंट के। तो आपके पास आपका पैराबोला इस फॉर्म का होगा। इसकी इक्वेशन हम जानते हैं सभी, इसकी इक्वेशन क्या होती है भाई, जब y के सिमेट्रिक है तो x का स्क्वायर, और वो भी नेगेटिव है यानी डाउनवर्ड है तो आपके पास राइट साइड नेगेटिव आएगी, माइनस का 4ay, ये इक्वेशन होनी चाहिए। a की जगह a यूज करना है, वो आपने यूज कर लिया, तो इसका मतलब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये रहेगी पैराबोला की, और इस वाले की स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ये आ जाएगी। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ द पैराबोलास। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स एट ओरिजिन मींस 0 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इक्वल, जो दी हुई है वो x इक्वल टू 7 दी हुई है। यानी आपकी इस स्टेटमेंट से क्या शो होता है, आपकी स्टेटमेंट से ये शो होता है कि जो डायरेक्ट्रिक्स है वो आपकी पॉजिटिव x की तरफ गई है, पॉजिटिव x की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव x की तरफ है, यानी इधर हो x इक्वल टू 7, सपोज करो यहां हो, ये डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 7 हुई, तो आपका पैराबोला कैसा हुआ, लेफ्ट हैंडेड, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स आपका अपोजिट डायरेक्शन होती है पैराबोला के। x का मान 7 था तो इधर 7 यूनिट पे ही आपका फोकस मिल जाएगा इसका, फिर ये आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हुआ जिसका फोकस आ जाएगा -7 क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू 7 दे रखी है, तो ये 7 यूनिट की डिस्टेंस है, ये 7 यूनिट की डिस्टेंस है, तो हम कहेंगे वर्टेक्स से आपके फोकस की डिस्टेंस भी उतनी होती है जितनी वर्टेक्स से आपके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है। इस केस में, कौन से केस में, उस पैराबोला के केस में जिसका वर्टेक्स 0 0 हो, उस केस में यही डिस्टेंस होती है, यानी वर्टेक्स आपका मिड पॉइंट होता है। तो आपके फोकस एस के कोऑर्डिनेट हुए -7 अब हमें देखने से पता लगा इसकी जनरल इक्वेशन क्या लिखी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी इसकी इक्वेशन है, तो आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये इक्वेशन कहलाएगी। क्योंकि x की सिमेट्रिक है, x की सिमेट्रिक तो y का स्क्वायर आएगा, और नेगेटिव पोर्शन में तो -4ax आएगा। अब a का मान -7 हो गया, रख दो, रिप्लेस कर दो, इसको रिप्लेस करेंगे किस 7, अब -7 ही मत रख देना, 7 ही रखना है, क्योंकि माइनस मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं, इस केस में मैं माइनस ऑलरेडी लगा चुका हूं, तो a का मान तो 7 ही रखना पड़ेगा आपको। देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू -4a into 7 into x, which is to be y square equal to -28x. This is the equation of the required parabola. ये आपकी एक पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। ऐसा इसका सेकंड पोर्शन है, उसमें आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही करना है, आप कर लेना, प्रॉब्लम आते बेटा डिस्कस कर लेना, मुझे बताएंगे जरूर। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, इसमें थोड़ा चेंज हुआ है। अब तक के तो जो रूटीन था आपका क्वेश्चंस का वो कैसा था कि आपके पास फोकस दिया हुआ इक्वेशन बनानी है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ इक्वेशन बनानी है, लेकिन अब की बार क्या है कि आपके पास पैराबोला की इक्वेशन ही जनरेट करनी है जिसका वर्टेक्स तो ओरिजिन है, बट ये पैराबोला आपका पास करता है किसी गिवन पॉइंट से जो -37 है, एंड उसका जो एक्सिस है पैराबोला का अलोंग एक्स एक्सिस है। अब ये बात का हमें पता है कि भी कोई भी पैराबोला हो जिसका एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो, यानी जिसकी सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस हो, तो वो दो ही फॉर्म देगा, या तो राइट हैंडेड या फिर आपका लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। यानी इन दोनों पैराबोला में से हमारा पैराबोला है ये, क्योंकि इसने कहा कि उसका एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो राइट हैंडेड पैराबोला का एक्सिस भी अलोंग एक्स एक्सिस होता है और लेफ्ट हैंडेड का भी अलोंग एक्स एक्सिस होता है। इस कारण से इन दोनों में से कोई भी हो सकता है ये। अब वो पता लगा हमें कैसे कि ए का मान जो आएगा, हमारा जो फोकस आएगा
उस फोकस से ही डिसाइड होगा कि आपका राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है। अब फोकस कैसे निकलेगा, अब एक काम कर लेते हैं, पहले जैसे इसकी जनरल इक्वेशन हमारे पास राइट हैंडेड की क्या है, राइट हैंडेड की इक्वेशन हमारे पास होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये होती है। और ये जो पॉइंट आपका शो कर रहा है, देखो ये पॉइंट ने क्या शो किया है कि x आपका -3 है, y आपका 7 है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का है, ये पॉइंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट का है। इस कारण से आप ये इक्वेशन नहीं ले सकते, क्योंकि ये इक्वेशन आपकी किसको शो करती है, या तो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करती है, ये करो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट से गई है, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट को। तो यहां तो आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता, x का मान तो पॉजिटिव है इस केस में। और यहाँ पे जो गिवन पॉइंट है जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जिस पॉइंट को पास कर रहा है, वो आपका -3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्लियर हुआ कि आपका लेफ्ट हैंडेड है, ये आपका लेफ्ट हैंडेड होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट आपका ये है, यहाँ पे x नेगेटिव होगा, इसके सामने y का मान पॉजिटिव होगा, तो -3 सेकंड क्वाड्रेंट का हुआ। इसका मतलब आपका पॉइंट यहाँ कहीं है, इसमें ये पॉइंट आपका कहीं भी हो सकता है, इस कर्व पे है -3 के सामने, उधर से 7 के सामने, या और ऊपर हो सकता है, जैसे इस कर्व को थोड़ा स्केच कर दे, सेव कर ले तो ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने सपोज करो P कह दिया भाई, ये पॉइंट आपका P है, -3 and 7। अब इसका मतलब ये होगा मुझे इक्वेशन में यहाँ पे माइनस सिंबल यूज करना पड़ेगा, y स्क्वायर टू -4ax। अब आप इस पॉइंट को अप्लाई करवा दो इसमें, सिंस लिखे भाई, सिंस दिस पैराबोला सेटिस्फाई, यदि जो पॉइंट है इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सिंस पैराबोला पासिंग थ्रू, पैराबोला पासिंग थ्रू -3 7, therefore this point must satisfy this equation, therefore ये पॉइंट आप इसमें अप्लाई करवाओ, y की जगह 7 रिप्लेस कीजिए, 49 इज इक्वल टू -4a, a की जगह आप रिप्लेस कीजिए, आपके पास a ही रहेगा, -4a इंटू x की जगह -3, ये लीजिए भाई, x की जगह आपने -3 पॉइंट रिप्लेस कर दिया है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 49। एक काम करने, आप नेगेटिव सिंबल पहले यूज कर चुके हैं, इस कारण से या तो आप इस -3 की जगह +3 यूज करें, या फिर आप इक्वेशन जनरल जो आप लेके चले थे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वही यूज करने, और x की जगह -3 रिप्लेस कर दें, अपने आप नेगेटिव इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस माइनस सिंबल को यहां से रख करने, -3 यूज करें x की जगह इस इक्वेशन में, 49 इक्वल टू आपके पास रहेगा -12a, और a का मान यहां से क्या हुआ भाई, 49/-12 इज इक्वल टू a, यानी क्लियर सिंबल हुआ आपके पास कि फोकस का जो कोऑर्डिनेट आपका वो नेगेटिव फॉर्म में आ गया है, और नेगेटिव हमें चाहिए क्योंकि लेफ्ट हैंडेड है। तो आप ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर आपने x का मान -3 ही रिप्लेस किया है, तो इस इक्वेशन को आप y स्क्वायर इक्वल टू 4ax यूज कर लें, या फिर अगर आपने -4ax यूज किया है तो आप x को 3 रखें, -3 ना रखें, ठीक है। तो आपके पास a का मान हो जाएगा -49/12। अब ये a का मान हुआ तो फोकस मिल गया हमें, आपके पास इस पैराबोला का फोकस आ गया ये, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड का फोकस ये होगा, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हुए, आपके पास बन जाएंगे -49/12 एंड 0। अब इसकी इक्वेशन आप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि a का मान जब ये आया है तो आप इसी इक्वेशन में रिप्लेस कर लो, a की जगह रिप्लेस करेंगे, फॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a की जगह -49/12 इंटू x, आप 4 से कैंसिल कर दो इसको, 4 3 12, आपके पास बन जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू -49/3 इंटू x, ये आपकी इक्वेशन हुई। ज्यादा से ज्यादा आप इतना कर सकते हैं कि 3 को लिया एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू -49x, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला, ये आपके रिक्वायर्ड पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 आपका बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे है जैसा आपका 6 क्वेश्चन हमने किया था, इस कारण से मैंने इसको ओमिट कर दिया। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ जाए तो आप डिस्कस कर लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन पैराबोला, यानी पैराबोला के ऊपर हमें उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताने हैं भाई, कौन से पैराबोला पे, जो y स्क्वायर इक्वल टू 18x हो, यानी ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन दे दी इसने, और हमें इसके ऊपर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, वेयर द कोऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स एब्सिसा, कि उसका ऑर्डिनेट मींस y कोऑर्डिनेट 3 टाइम्स एब्सिसा, x कोऑर्डिनेट का 3 गुना हो, यानी इसी बात को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि y इज इक्वल टू 3x तो गलत नहीं होगा, इसका मीनिंग यही है, क्योंकि ऑर्डिनेट होता है y
किसी भी पॉइंट का, क्योंकि पॉइंट को आप लिखते हो किससे, पी एक्स वाई ऐसे लिखते हो, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो इसका ऑर्डिनेट यानी मींस वाई इक्वल टू 3 टाइम्स एब्सिसा, तो इसका 3 गुना हो जाएगा एक्स का, ठीक है। ये रिप्लेस कर दो बेटा इसमें आपकी इक्वेशन में, यानी आपकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू गिवन पैराबोला, यानी गिवन पैराबोला क्या है, गिवन पैराबोला आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 18x है और y का मान हमारे पास 3x है, रिप्लेस कर दो, पुट y इक्वल टू 3x, क्या बन जाएगा 3x होल स्क्वायर, y को रिप्लेस किया 3x से, y इक्वल टू 3x स्क्वायर इक्वल टू 18x, सॉल्व कर दो भाई, कितना हुआ 9x स्क्वायर इक्वल टू 18x। देखो अब दो ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन तो ये कि इस 18x को इसके नीचे ले आओ, एक x या 9 को उधर ले जाओ, x को इसके नीचे ले आओ, अगर x को इधर लेके आओगे डिवाइड में तो एक x कैंसिल होके x इक्वल टू 2 बचेगा, लेकिन एक ही पॉइंट आया, यहां से एक वैल्यू मिली आपको। आप ऐसा करो, इस 18x को माइनस में लेके आओ इधर, यानी 9x स्क्वायर माइनस 18x इक्वल टू 0। अब यहां से आपके x की दो कोऑर्डिनेट जो आपका आया है x कोऑर्डिनेट, उसके दो मान आ जाएंगे, दो वैल्यू मिल जाएंगे आपको। 9x कॉमन करो, 9x टेकिंग 9x एज द कॉमन फैक्टर, वी मस्ट हैव x minus 2 इक्वल टू 0, आइदर दिस 0 और दिस 0, either this equal to 0 यानी 9x equal to 0 और this 0 means x minus 2 equal to 0, if this 0 then x equal to 0 and if this 0 then x equal to 2। तो x के दो मान आपके पास आए हैं भाई, या तो x 0 है या x आपका 2 है। अगर x 0 है तो y का मान क्या होगा, यहां से देखिए, अगर आपका x 0 है तो आपके पास यहां रिप्लेस कर दो इसको, if x equal to 0 then y square इज इक्वल टू 0 एंड y मस्ट 0, तो पॉइंट क्या बन जाएगा, देयरफॉर पॉइंट बन जाएगा आपका 0 एंड 0, क्योंकि x 0 रिप्लेस करने से y भी 0, x को 0 पुट करने से y का मान भी 0 मिला हमें, इस कारण से पॉइंट हुआ 0 0। इफ x इक्वल टू 2, इफ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू, रिप्लेस करो, यहां अगर मैं रखता हूं x इक्वल टू 2 तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 36, y इक्वल टू 36, y स्क्वायर इक्वल टू 36, देयरफॉर y इक्वल टू रूट ऑफ 36, और रूट 36 से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 6, यानी आपके पास ये वैल्यू मिलेगी आपके जो y कोऑर्डिनेट की है, या तो प्लस 6 या फिर माइनस 6। पॉइंट क्या हुआ, यहां से पॉइंट हमारे पास मिल जाएंगे भाई, x को हमने रिप्लेस किया था 2 से, तो एक y आपका है प्लस का 6, तो आपके पास पॉइंट हुआ 2 6, या फिर दूसरा इफ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू माइनस 6, तो ये दो पॉइंट आपके यहां से मिल जाएंगे। यानी इस पैराबोला के लिए जो कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट के आपको बताने थे वो 3 पॉइंट हो सकते हैं, या तो ओरिजिन आपका 0 0, या फिर आपका 2 6 है, या फिर आपका 2 माइनस 6 है। ये आपका क्वेश्चन था 8th। बट हम ये देख रहे हैं भाई कि आपका जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन क्या दी हुई है, उसकी इक्वेशन थी y स्क्वायर इक्वल टू 18x। इसका मतलब कैसा हुआ है, ये आपका राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड है, तो आपका इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर सकता है, राइट हैंडेड में आपका 0 0 नहीं हो सकता, क्योंकि पैराबोला आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे हो गया, वहां पैराबोला बनेगा कैसे अकेला उस पे, ठीक है। दूसरा ये, यानी ये पॉइंट हो सकता है उसका उस पे ओरिजिन से ही पास करता है वर्टेक्स आपका, क्योंकि आपके इस पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 ही है, ये पॉइंट बन सकता है, लेकिन आपका ये नेगेटिव वाला नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि आपके पास ये जो इक्वेशन है आपकी राइट हैंडेड फॉर्म की है, इस कारण से आपका जो पॉइंट रहेगा वो 2 6 ही रहेगा, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। इसको आप आंसर कह सकते हैं आपका इस पैराबोला के लिए, क्योंकि राइट हैंडेड है। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इस एक्सरसाइज का, जिसका टॉपिक बिल्कुल ही चेंज हुआ है, यानी अब तक के जितने क्वेश्चन थे आपके पास क्या था, उनमें आपका जो पैराबोला दिया हुआ था उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे था, लेकिन अब की बार जो क्वेश्चन इसकी स्टेटमेंट रीड कीजिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्या दिया हुआ है। इसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच फोकस इज 2 5, जिसका फोकस 2 5 है, फोकस 2 5 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फोकस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दैट मींस एक्सिस पे नहीं है, ना ही तो एक्स एक्सिस का पॉइंट है ये, ना ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए, इसका मतलब ये हुआ कि आपका फोकस एक्सिस पे नहीं है बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, और आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। आप ऐसा कर लें, सबसे पहले तो आप स्केच करें आपके फोकस के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी कि फोकस आपका 2 5 है, यानी हमें पता लगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, मैंने इसको स्केच कर लिया भाई, ये आपका x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5 के सामने ये आपका फोकस है यहाँ पे। इसके बाद मैंने क्या किया, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को सोल्व किया,
डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये आपको पता है लीनियर इक्वेशन है। टेबल अगर बनाए, अगर x का मान हम 1 रखेंगे तो y का मान यहां से -1 आ जाएगा, और अगर हम x का मान 5 रखेंगे तो y की जो वैल्यू -4 आ जाएगी। इन दोनों पॉइंटों को जो मैंने प्लॉट किया तो आपके पास आएगा 1 -1, x की वैल्यू 1, y -1, ये आपका पॉइंट हुआ। और दूसरा आपके पास 5x की वैल्यू और y है -4, ये पॉइंट हुआ। इन दोनों को मिला के अगर मैं इक्वेशन बना लेता हूं, लाइन को स्केच कर लेता हूं, तो ये आपकी लाइन डायरेक्ट्रिक्स ऐसे पास करेगी, यहां से जाएगी। तो ये आपका हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि हमें पता है आपका जो एक्सिस होता है पैराबोला का वो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होता है, यानी ये जो एंगल है आपका ये 90 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन आपकी ऐसे पास करने वाले मैंने ऐसे स्केच कर दिए ये, यानी आपके पैराबोला की स्ट्रक्चर ऐसी कुछ होगी, तो ऐसा पैराबोला बनेगा आपका, ये पैराबोला हुआ। अब हमें इसकी इक्वेशन चाहिए, ठीक है, जो कि बाकी आपके पैराबोला से डिफरेंट है। तो क्या करेंगे इस केस में, आप एक पॉइंट P कंसीडर कर लेंगे इस पैराबोला के ऊपर कहीं भी। हमने यहाँ पे ये पॉइंट P कंसीडर किया जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लिए हैं, ठीक है। एक बात का हमें पता है क्या, जब मैंने आपका लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, ये इसके लास्ट टॉपिक्स में हमने बताया था कि आपकी अगर इसेंट्रिसिटी 0 बनती है तो क्या बनता है, सर्कल। इसेंट्रिसिटी अगर 0 होती है तो सर्कल बनता है, और E अगर 1 होता है तो पैराबोला बनता है। यानी इस केस में आप ये कह दें कि सर इसेंट्रिसिटी 1 है। इसेंट्रिसिटी 1 का अर्थ क्या हुआ कि आपके पास जो PS है, ये डिस्टेंस, यानी उस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से, फोकस से, और इस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों ही आपके पास इक्वल है, तभी आपकी रेशो, इन दोनों की रेशो 1 हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जब आपने कोने की डेफिनेशन दी थी या पैराबोला की डेफिनेशन दी थी, तो याद करो क्या थी, उसने ये कहा था, लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स इन द प्लेन सच दैट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द फोकस टू ए फिक्स स्ट्रेट लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल, वो इक्वल हो तब पैराबोला होता है। इसका मतलब ये होगा कि मैंने PS को PM के बराबर रखना है, इस केस में इसेंट्रिसिटी 1 बनेगी, क्योंकि PS और PM इक्वल होंगे तभी आपके पास E का मान 1 हो सकता है। इस कारण से मैंने क्या कर दिया, ये डिस्टेंस से अप्लाई कर दी कि एक PS डिस्टेंस PM के बराबर है, मैंने वही रिजल्ट यूज किया, ठीक है। PS इक्वल टू PM, अब PS की वैल्यू काउंट करेंगे, जब P के कोऑर्डिनेट XY है, S के कोऑर्डिनेट 2 5 है, तो डिस्टेंस फार्मूला से ये निकाल लो, PS डिस्टेंस ये बन जाएगी x - 2 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला से y - 5 का होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब PM डिस्टेंस देखिए भाई, यानी ये पॉइंट P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसकी, यानी इस स्ट्रेट लाइन की कह दो, या यूं कह दो कि पॉइंट P की स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही PM है। वो कैसे निकलती है, ये भी आपका कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेट लाइन में, कि किसी पॉइंट से गिवन लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको चेक करनी है तो ये होती है AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइडेड बाई रूट में A² प्लस B², यानी डिस्टेंस का फार्मूला है, किसी गिवन पॉइंट की गिवन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है। AX का मतलब देखो ये A भी आपका 3 है, X1 जो मैंने बोला था ना अभी कि AX1, वो X1 का मतलब होता है जिस पॉइंट से आप ले रहे हैं। अब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने X और Y कंसीडर कर रखे हैं, यहां भी आपके XY ही है, X1 की जगह भी X ही है, Y1 की जगह भी Y ही है, तो इसका मतलब ये XY एज इट इज नजर आएंगे आपको इसमें, इस कारण से मैंने XY ही रख दिया, ठीक है। तो ये आपका ये एज इट इज रहेगा 3x + 4y, ये आपका C है, कांस्टेंट नंबर यानी इंटरसेप्ट उसने जो बनाया है वो आपका 1 है, तो ये प्लस में C एज इट इज डिवाइडेड बाई ये आपका A हुआ, ये आपका B हुआ, तो A² प्लस B² का रूट, A² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस में B² मींस 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, इसको सोल्व करते हैं तो क्या बनता है भाई, ये 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, यानी ये 5 आएगा। मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों और स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो इधर इसका होल स्क्वायर बनेगा, अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 बनेगा, उस 25 को मैंने बेटा लेफ्ट साइड में ले लिया इधर, इसका स्क्वायर रूट हटा दो स्क्वायर से, और 25 इंटू इनको सोल्व कर दिया, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और ये आपके पास रहेगा होल स्क्वायर। अब इन टर्म्स को मैंने सोल्व किया, बस 25 देखो, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो x² माइनस के 4x प्लस के 4, इसको भी खोलते हैं तो y² माइनस का 10y प्लस 25, और 25 होल मल्टीप्लाई है जो आपका इधर से 5 का स्क्वायर आया था, इसको मल्टीप्लाई कर दो 25 से, ये केसेस आपके पास आ जाएगी। अब राइट साइड में आपके पास A + B + C का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हुआ, ये आइडेंटिटी हुई, A + B + C होल स्क्वायर क्या होती है, याद होगा 9th क्लास में रीड करके आए थे आपके पास
फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट सेकंड प्लस 2 टाइम्स सेकंड थर्ड प्लस 2 टाइम्स थर्ड फर्स्ट। मैंने वही अप्लाई किया, इसको खोल दिया। फर्स्ट का स्क्वायर इन 9x स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर इन 4y स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू प्लस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू प्लस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। इसको सोल्व कर लिया बेटा, ये आया। अब क्या किया है कि सारी की सारी टर्में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई वाई ओनली एक्स ओनली कांस्टेंट हमने लेफ्ट साइड में ले लिए। इन सभी टर्मों को उठाओ लेफ्ट साइड में ले आओ। ये 25x स्क्वायर माइनस के 9x स्क्वायर क्या बच जाएगा 16x स्क्वायर और आपके पास 25y स्क्वायर है, इधर आके माइनस का 16y स्क्वायर कितना बच जाएगा प्लस 9y स्क्वायर। सिमिलरली माइनस 106x एंड माइनस 258y एंड माइनस का 20x, ये आपका जो 24xy प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस 24xy। और ये जो टर्म आपने कांस्टेंट वाली काउंट कर ली है भाई, एंड ये हुआ और 625 ये हुआ कितना हो गया 725 और इधर का एक प्लस 1 है, इस प्लस 1 को जो ले आओ कितना बच जाएगा, वो माइनस का होने के बाद ही आपका प्लस का 724 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यानी आपका जो पैराबोला दिया हुआ था उस पैराबोला की इक्वेशन ये आएगी आपके पास। इसको शो कर दें। यस बेटा, देखिए आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus is 1 minus 1 and vertex is 2 1, यानी जिसका फोकस है 1 minus 1। आपकी बार भी क्लियर है लास्ट क्वेश्चन की तरह से ही कि आपका जो फोकस है एक्सिस पे नहीं है। 1 minus 1 का अर्थ हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट का है, यानी आपके जो फिगर बढ़ेगी देखना, आपका जो मैंने फिगर स्केच किया आप इसके पैराबोला का वो ऐसा हुआ, ये फोकस आपका x 1 है y minus 1 है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट का है ये। इसी प्रकार से उसने कहा वर्टेक्स 2 1, यानी वर्टेक्स आपका किसमें, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये 2 1 है। और हमें पता है आपका जो एक्सिस होता है पैराबोला का, फोकस और वर्टेक्स से पास होने वाली लाइन होती है, ये आपका एक्सिस आ जाएगा, यानी ये स्ट्रक्चर आपके पैराबोला की बन जाएगी। अब हमें क्या चाहिए था, हमने क्या किया भाई, पहले डायरेक्ट्रिक्स की कैसे निकाली है। क्यों, क्योंकि हमें एक बात का पता है कि आपका जो वर्टेक्स होता है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उसका मिड पॉइंट होता है ये। तो आपके पास अगर इस क्यू के कोऑर्डिनेट मिल जाए, जिसको हमने ए भी मान लिया है, तो आप आसानी से आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल सकते हो और फिर आपका क्वेश्चन वैसा ही हो जाएगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 9th वाला। ठीक है, तो इस कारण से पहले हमने जो सॉल्यूशन है इसका किसकी फॉर्म में किया है कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें मिले उस फॉर्म में किया है। तो सबसे पहले चलिए आपके पास क्या निकाला आपने, हमें भाई स्लोप मिल जाएगा इस लाइन का, एक्सिस वाली लाइन का स्लोप मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सिस आपका दो पॉइंटों से पास कर रहा है, एस से और वी से, दोनों के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 2 1 और -1 0, -1 सॉरी +1 और -1, ये हमारे पास वर्टेक्स के और फोकस के कोऑर्डिनेट है। तो 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का स्लोप हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगर हम अप्लाई करेंगे तो y2 हमने लिया है आपके पास y1, ये 1 है आपका 1, इसमें से y1 को माइनस किया यानी -1 को, तो y2 - y1 यानी 1 + 1 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ये आपका x2 2 अपॉन यानी माइनस में x1 जो कि 1 है, तो 2 - 1 आपका 1 हो जाएगा, यानी आपके पास रहेगा 2 अपॉन 1 2, यानी इस एक्सिस का स्लोप आपने निकाल लिया, कितना आया 2। अब हमें पता है जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। इस कारण से हमने डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप बोल दिया भाई, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/2। अब डायरेक्ट्रिक्स के लिए ये पॉइंट निकालो, पहले पॉइंट निकाले मिड पॉइंट फार्मूला से, इसके कोऑर्डिनेट को हमने ए भी कंसीडर किया और ये आपके पास दोनों वर्टेक्स हैं ही, हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाया भाई x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू दिस, यानी a + 1, यानी x1 आपका क्या है a प्लस x2 आपका है 1, तो a + 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर। ये मिड पॉइंट फार्मूला कहता है कि x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है। अब इसको सोल्व करें तो 2 दूनी 4 हुआ, -1 जाके 3 हुआ, यानी a का मान आपके पास 3 आ गया भाई। ठीक है, इसी प्रकार से y2 आपके पास ये है y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, यानी b + -1, तो b - 1 अपॉन 2, b - 1 अपॉन 2 इक्वल टू हुआ इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर जो कि 1 हुआ।
इसको सोल्व करेंगे तो बी का मान कितना आया आपके पास 3, यानी हमें एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है, जिसको आपने एबीसी डिनोट किया था, कितना आ गया 3 3, ये आपके पास पॉइंट हुआ। अब इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग स्लोप। 10th चैप्टर कहता है आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग स्लोप, यानी जिसको पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये आपकी इक्वेशन है। अब हमने पॉइंट अप्लाई करवा दिया भाई, y1 आपका कितना है 3, तो y माइनस y1 ये 3 इक्वल टू m की जगह कितना था आपका स्लोप -1/2, ये -1/2, x माइनस x1 कितना है, ये भी 3, तो आपका हुआ x माइनस 3। सोल्व किया इसको, ये इक्वेशन बन गई भाई x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी आपने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल ली। अब आप वही कॉन्सेप्ट लगाओ जो आपने इसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। यहां कोई पॉइंट ले लेते हैं आपके इस पैराबोला पे P, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो यहां से एक PS डिस्टेंस और ये PM डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, क्योंकि पैराबोला के केस में दोनों बराबर होती हैं। तो हमने PS इक्वल टू PM रख दिया, डिस्टेंस फार्मूला से PS निकाल ली, x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 1 यानी y प्लस 1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू ये पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो मॉडुलस वाला फार्मूला आप याद करो। पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन कैसे काउंट होती है, ये इक्वेशन अपॉन में x यानी a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट है वो a होता है, y का कोएफिशिएंट b होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट होल मोड, ये आपकी इस पॉइंट की डिस्टेंस आ जाएगी यहां से, यानी PM आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, अभी स्क्वायर किया दोनों साइड में, स्क्वायर बोथ साइड, देखो इसको सोल्व करोगे क्या आएगा √5, स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 5 इधर आके मल्टीप्लाई करवा दिया, इसका स्क्वायर रूट हटा दिया, अभी खोल दिया, इसको सोल्व कर दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म आएंगे आपके पास। अब इस 5 को अंदर ले जाओ, 5 को अंदर लेके गए तो 5x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 5y स्क्वायर 10y प्लस का 5 इक्वल टू ये आपका सेम एज इट इज, मैंने एज इट इज रख दिया इसको। इसके बाद इन टर्म को उठाओ बेटा, लेफ्ट साइड में ले आओ, 5x स्क्वायर प्लस का है, 1x स्क्वायर इधर आके माइनस का जो 4x स्क्वायर, ऐसे आपके पास बचेगा प्लस y स्क्वायर माइनस का 4xy, इधर प्लस 4xy था, इधर आके माइनस का 4xy, xy इकट्ठी कर लो, माइनस का आपके पास ये 10x है और इधर से आपका 18x माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद प्लस 8x। सिमिलरली y वाली जो टर्म है, इधर 10y है, इधर से 36y आएगा, प्लस हो जाएगा 46y हो जाएगा, माइनस का 71 इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जिस पैराबोला की इक्वेशन आपको चाहिए थी उसकी इक्वेशन ये है भाई। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है पैराबोला की वो आ गई है। इस टाइप से आपका ये जो कॉन्सेप्ट है पैराबोला से रिलेटेड एक्सरसाइज 11.3 आपकी कंप्लीट हुई। अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी रहती है बेटा, कोई डाउट रह जाए, फिर भी समझ में ना आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इसको।